خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. منافقین پہ لعنت، خوارج پہ لعنت، منافقین پہ لعنت. خدا منافقین پہ لعنت کرے، خوارج پہ لعنت. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. امام علی علیہ السلام کی وصیت کا آخری جملہ یہ تھا، سلام اللہ علیہم. دنیا سے دل نہ لگاؤ اور جو چیز ہاتھ نہ آئے اس کا رنج نہ کرو. ہمیشہ حق کا ساتھ دو، ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھو اور غریبوں اور فقیروں کا ساتھ دینے سے نہ جھجکو. اور کہا کہ رسول خدا کے اس کلام کو نہ بھولو کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایک میراث اپنی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن اور دوسری میری اطرت. دیکھو منافقین آ گئے. دفاع کرو ان کو، باہر نکالو ان کو، اندر نہ دو ان کو، باہر نکال دے. دفاع ہو جاؤ. کسی کو اندر نہ دے. ان کو باہر ان کو باہر نکال دو. ٹھہرو، خاموش، رک جاؤ. نہیں، سنو. یہ خوارج ہیں. ابن ملجم کو تلوار دینے والے یہی ہیں، امام کو مارنے والے یہی ہیں. یہ منافقین ہیں، ان کو باہر نکال دو. خوارج پہ لانے، یہ لعنتی خوارج ہیں، پہ ان کو لانے، باہر نکال دو. منافقین پہ لانے، منافقین ہیں، منافقین کو نکال دو. منافقین کو باہر لعنت نکال ہو دو. خدا کی منافقین پر. ان منافقین کو اندر نہیں آنے دو. نکال دو ان لعنتوں میں کو. کہتا ہوں بیٹھ یہ جاؤ، خوارج ہیں. نکال دو. بیٹھ جاؤ، میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ. یہ لوگ علی ابن ابی طالب کی تعزیت کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید. علی کے قاتلوں کو خوش آمدید کہتے ہو؟ میں علی کے عزاداروں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بیٹھ جاؤ، انہیں راستہ دو، آئیں. ابن عباس، میں صرف ایک بات کہوں گا بس. نہ میں، نہ اشعث ابن قیس اور نہ ابن عمیر، ہم تینوں میں سے کوئی بھی علی کے قتل میں ملوث نہیں تھا. بیٹھ جاؤ شمر ذی الجوشن، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. صفین میں تم میں سے بہت سے لوگ معاویہ کی مکاری و چالاکی کے گواہ تھے. کس طرح معصوم لوگوں کو بے وقوف بنایا اور جو ذلت میں دو چار تھے انہیں بچا لینے کا دھوکہ دیا. خدا ان پر لعنت کرے. اس نے دین خدا کو اہمیت نہیں دی، بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ پر خنجر بھونکا. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حکمیت والے دن ان لوگوں نے اس مقدس نما جاہل ابو موسیٰ اشعری کو کس طرح بے وقوف بنایا، مگر امیر المومنین علی نے خاموشی اختیار کی اور کوئی اعتراض نہیں کیا. روتی شکل بناؤ. امیر المومنین کے فرزند حسن ابن علی نے فرمایا کہ جس رات میرے بابا کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، اور اسی رات عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر تشریف لے گئے. یہ رات نزول قرآن کی رات تھی، جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی. اگر وہ حسن کو خلیفہ بنانے کا اعلان کریں تو کیا کریں؟ اس شرط پہ حسن ابن علی کی بیعت کریں گے کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں. کیا ہم پسر علی کے ساتھ مل کے معاویہ سے جنگ کریں گے؟ اے لوگ، جان لو کہ امیر المومنین نے پاکیزہ اور طاہر زندگی گزاری اور اسی پاکیزہ اور طاہر حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. جب رحمت خدا سے پیوست ہوئے تو ترکے میں صرف 700 درہم چھوڑے جو کہ بیت المال سے ان کا حق بنتا تھا. کاش یہ برستی آنکھیں ہماری توبہ کا سبب بن جائے. اے کوفے والو،
خدا کی قسم آج زیر آسمان و روئے زمین حسن اور حسین کے علاوہ کوئی امام نہیں ملے گا جو سرداران جنت اور زینت دوش رسول خدا بھی ہیں۔ علی نے ابا محمد سے فرمایا کہ بیٹا حسن، میرے بعد تم میرے خون کے وارث اور میرے جانشین ہو۔ اے لوگو، حسن ابن علی ابا محمد یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے بیٹے حسن ابن اور علی کی امام بیعت علیہ لینا السلام چاہتا کے ہے۔ جانشین ابا محمد رسول خدا کے بیٹے اور امام علی علیہ السلام کے جانشین اور ہمارے امام ہیں، لہٰذا ان کی بیعت کر لو تاکہ خداوند متعال راہ انصاف کے پیروکاروں کو ان کے وجود کے نور کے ذریعے سے نجات دے اور منزل مقصود تک رہنمائی کرے۔ اب ہم کیا کریں شیخ؟ اگر وہ معاویہ سے جنگ کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہار پانی پی کے روزہ توڑ رہے ہو؟ کیا ہم سفر میں نہیں ہیں؟ تمہارا بس یہی کام ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اتنی آسانی سے یہاں تک جان بچا کر پہنچ جائیں۔ احمد کا دماغ بھی خوب کام کرتا ہے، لگتا ہے کہ مدتوں امریاض کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس بات اس فاسق سے نہ دو، میرا خون کھول جاتا ہے۔ رشید نے کیا نام بتایا تھا اس شخص کا، اس مارنے والے کا؟ برک۔ ہاں، برک نے بتایا تھا کہ خوارج نے امریاض کو مار ڈالا۔ میں نہیں سمجھتا، وہ بہت مکار ہے۔ دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہوگا، نہ جانے کتنی بار اپنی جان بچا چکا ہے۔ بہادری سے نہیں بلکہ مکر و فریب سے۔ پتا ہے صفین میں ذوالفقار علی کی زد میں آ گیا تھا؟ جانتے ہو جان کے ڈر سے کیا کیا تھا؟ ننگا ہو گیا تھا۔ علی نے شرمگاہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں تم کو شرمگاہ کی وجہ سے معاف کیا۔ اٹھو، اب چلتے ہیں۔ نہیں، ٹھہرو، سوار آ رہا ہے۔ کدھر سے؟ اس طرف سے۔ میرے خیال میں ایک قاصد ہے جو کوفے سے آ رہا ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔
कहाँ? कहाँ चला गया? उसे अभी ढूंढ निकालो। रुक जाओ। कहाँ से आ रहे हो? कूफे से। कूफे से? मगर जा कहाँ रहे हो? अमीरुल मोमिनीन माविया के पास। अमीरुल मोमिनीन? फिर तो कोई खास खबर लेके जा रहे हो। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? डरो नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। जानते हो जिस तेजी से तुम सफर कर रहे हो आधे दिन में दमिश्क पहुंच जाओगे। हम तुम्हारी मुश्किलात को कम करना चाहते हैं। रास्ता छोड़ो वरना जान लो कि तुम्हारा वास्ता अमीरुल मोमिनीन के सिपाहियों से पड़ा है। हमने तो कोई बुरी बात नहीं कही। तुम वो पैगाम हमको दे दो और कूफे पलट जाओ, हम उसे अमीर तक पहुंचा देंगे। मुझसे क्या चाहते हो? हमें उस पैगाम के बारे में मालूम करना है। नहीं बता सकता, दूर हट जाओ। अभी बताओगे। मुझे छोड़ो, मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा ठहरो ठहरो, बताता हूँ। तूने वो पैगाम कहाँ छुपा रखा है? उधर देखो, सवार आ रहे हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आई! 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 देखो इनको पकड़ो, ये अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन हैं जो भाग रहे हैं। ये हमरे आस के फौजी लगते हैं। सच कह रहे हो, मिस्रियों का लिबास पहने हैं। हिंदा के बेटे की क्या आरजू है? पूरी जमीन पर हुकूमत कायम करना चाहता है। लगता है इस बार वो अली के कत्ल को बहाना बना के लोगों का खून बहाना चाहता है। मैं समझता हूँ जितना जल्दी मुमकिन हो वो सब लोगों को उसकी तरफ खींचना चाहता है। कोई बड़ा फितना उठने वाला है, इसकी खबर इब्ने अब्बास को देना बहुत जरूरी है। जल्दी चलो, वक्त कम है। रुको।
क्यों रुक गए हो? क्या सोच रहे हो? लगता है हमारे आस के नाम से कोई नया बहाना दिमाग में आ गया है। मजाक मत करो। बेहतर है कि हम में से सिर्फ 2 आदमी कूफे जाएं और एक आदमी यहीं रुक के ताज़ा खबरें मालूम करे और इस रास्ते पे आने जाने वालों पे नज़र भी रखे। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से रब्ता रखेंगे, इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो? मैं समझता हूँ खबर ले जाने के लिए 2 आदमी काफ़ी हैं। नहीं, 1 आदमी काफ़ी है। तुम लोग यहीं रहो, मैं कूफे जाके खबर पहुंचाता हूँ। तुम क्यों जाओगे? तुम चुप रहो। मैं अपने वालिद के साथ आज से 4 साल पहले सरजमीन ईरान से मौला अली से मुलाकात के लिए निकला, लेकिन उन तक न पहुंच सका। हमारा इससे क्या रब्त है? तुम चुप रहो। रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया और मुझे असीर कर लिया। हमने तो तुम्हें कैद नहीं किया, तुम चुप रहो। मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। मैं फरार कर गया। मैं दोबारा असीर हुआ और अब मैं उस वक्त पहुंचा हूं कि जब अली मुर्तज़ा दुनिया में नहीं है। मैं उनकी ज़ियारत से महरूम हो गया, लेकिन अभी तक उनकी ज़ियारत का शौक़ मेरे दिल में वैसे ही जोश मार रहा है। हम भी तुम्हारी तरह ज़ियारत के मुश्ताक। अब तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं जल्दी से कूफे पहुंच सकूं। अगरचे मैं मौला अली की ज़ियारत से महरूम हो गया हूं, लेकिन कम से कम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकूं। मैं इस बात की इजाज़त नहीं देता। तुम चुप रहो। क्यों तुम जाओगे? क्या हम और साले उनके चाहने वालों में से नहीं हैं? हम भी उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं। तो तुम भी चलो। कब? हम तो अभी जाएंगे। मैं खुद जा रहा हूं, तुम घोड़े से उतरो। जाओ जल्दी कूफे जाओ। अच्छा मैं जाऊं? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर से धोखा खा गए ना? तुम बिल्कुल अमर-ए-आज़ जैसे लग रहे हो। चलो। हार दोबारा मेरे जाल में फंसोगे तो बताऊंगा। नहीं फंसूंगा। सलाम साहब। बताओ तुम किसका पैगाम माफिया तक ले जा रहे हो? तो खुदा की कसम मुझे मजबूर ना करें, मैं नहीं बता सकता। कहता है नहीं बता सकता। ठीक है, जाओ दफा हो जाओ।
ذرا ٹھہرو، اگر میں چاہتا تو ساری بات تمہاری زبان سے اگلوا سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ معاویہ مجھے ہر بات خود ہی بتا دے گا۔ تمہارے پیغام کی کیا حیثیت، وہ تو مجھے یہاں تک بتا دے گا کہ بیت الخلا کتنی دفعہ گیا۔ جاؤ، جا کر معاویہ سے کہہ دو کہ عمرو عاص آ چکا ہے۔ بالکل صحیح اور سالم، نہ اسے خوارج مار سکتے ہیں اور نہ ہی اسے علی کی ذوالفقار۔ جا کر کہہ دینا کہ عمرو عاص نے کہا ہے کہ جب تک تم سب کی نماز میت نہ پڑھا لے اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ چلو چلیں۔ نہیں بھائی، میرا اونٹ تو اس سے بھی زیادہ تندرست تھا، نہیں دیکھا شاید تم لوگوں نے۔ بھائی ابن عباس کہاں ہوں گے؟ وہاں، گھوڑے کو یہیں چھوڑ دو، میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ ہاں بتاؤ، کیا کہہ رہے تھے؟ ادھر آؤ عبداللہ۔ سلام علیکم خلیل۔ انہیں بتاؤ۔ بھائی، ان میں سے ابن عباس کون ہے؟ کوئی نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ قیس تم بانٹ دینا، اچھی بات ہے۔ قریب ہو جاؤ، اب میں سب کے نام پکاروں گا۔ اسماعیل ابن ہدی، یہ لو تمہارا خط، جاؤ۔ قاسم ابن عبداللہ، یہ لو، جاؤ۔ راشد ابن اوس، یہ تمہارا نامہ اور ابن عباس کا پیغام دے دینا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر مجھ سے کچھ کام ہے تو بتاؤ۔ میں عبید اللہ ابن عباس کے لیے پیغام لایا ہوں۔ عبید اللہ میں خود ہوں۔ میں شام سے حارث کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ حارث نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے۔ ہاں، حارث کا کیا حال ہے؟ ایک مدت سے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک نہیں ہے، مولا علی کے فراق میں روتے رہتے ہیں۔ سب رو رہے، اور وہ سب سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ علی کے باوفا دوستوں میں سے ہیں، انہیں عشق علی تھا۔
इसी तरह उनकी औलाद भी आशिक अली है। तुमने कहा पैगाम लाए हो। इजाज़त दीजिए, मैं तन्हाई में आपको बताऊंगा। आओ मेरे साथ। ये लो तुम्हारा। आओ। अमीर, अमरास ने मुझसे कहा है कि आपको बता दूं कि उबैदुल्लाह के बाद कैस इब्न साद ने भी हसन इब्न अली की बैत कर ली है। या अमीर, अली ने उसको इराकी लश्कर का सिपह सालार बनाया था। उसने कहा यह भी अर्ज कर दूं कि कैस ने नारा लगा के कहा कि दुश्मनान ने किताब खुदा और सुन्नत रसूल और मुनाफिकीन से जंग के लिए आपकी बैत करता हूँ, मगर हसन इब्न अली ने कहा किताब खुदा और सुन्नत रसूल की पैरवी काफ़ी है और हर चीज़ इन दो में मौजूद है। इसके बाद कैस ने गर्मजोशी से बैत कर ली। अम्र से कहो इसके बाद वो मुझे लिखा करे। अमीर डरता है कहीं किसी के हाथ ना लग जाए। वो मुझे लिखा करे। इताअत। अम्र ने कहा यह भी बता दूं कि बहुत से गिरोह ने अबा मोहम्मद की बैत में जल्दी की है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो अली के दुश्मन थे। खवारिज? हाँ, खवारिज और बुजुर्गान गिरोह की शक्ल में हसन इब्न अली के पास आए। वो सब शाम के साथ जंग चाहते थे। और फिर अम्र आस ने शिम, अशअस और इब्न उमैर के साथ मुलाकात की और इनको हसन इब्न अली की बैत से रोका, मगर वो नहीं माने और कहा हमारी हसन इब्न अली की बैत के लिए सिर्फ एक शर्त थी और वो शर्त ये थी कि शाम के साथ जंग की जाए। शाम के साथ जंग? और हसन इब्न अली ने कबूल किया? और अम्र आस ने कहा यह भी बता दूं कि फिर हसन इब्न अली ने इनसे कहा नहीं, बल्कि मुकम्मल इताअत और पैरवी होनी चाहिए, चाहे जंग हो कि अमन। और हाँ, एक और बात, और वो ये कि दमिश्क पहुंचने से पहले बाद ज़ोहर 3 लोगों ने मुझ पर हमला किया ताकि इस पैगाम के बारे में जान सकें जो मैं ला रहा था। तो बताया तुमने? नहीं अमीर, अगर वो मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े भी कर देते तो भी मैं जबान नहीं खुलता। और हाँ, एक और पैगाम। अम्र आस ने कहा आपको ये भी बता दूं कि अम्र आस को देखा? कहाँ? उसके आदमी मुझे उसके पास ले गए थे। वो शाम के रास्ते में है, बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाला है। अम्र आस है मक्कार और बेदीन, लोमड़ी सिफत, फिर से जान बचा ले गया। कैसे अच्छे वक्त पे आ रहा है, ऐसा वक्त कि मैं कभी उसका इतना जरूरतमंद नहीं था। हाँ, कहा पैगाम लाए हो? हाँ अमीर, उसने कहा कि आपको बता दूं कि जब तक आप सबको अपने हाथों से कब्रों में दफन ना कर दूं, इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक आपके फ़र्जंद अर्जुमन हसन इब्न अली ने उमूर मुस्लिमीन की बागडोर संभाली। इमाम ने मसनद खिलाफत को उस वक्त संभाला कि इससे पहले कोई इन हालात से दो चार नहीं हुआ था, इसलिए कि आलम इस्लाम को हुकूमत शाम की जानिब से बहुत बड़ा ख़तरा लाहक था, जिसकी हुकूमत की बुनियाद झूठ, जुल्म और मक्कारी पर उस्तवार थी। हुकूमत शाम को इस्तेहकाम मिल चुका था और उसका फितना व फसाद हर जगह फैल रहा था। ज़ईफ़ ईमान, सियाह दिल और मुर्दा ज़मीर लोग और दीन व अक़ीदे में कमज़ोर अफराद उसके धोखे में आकर उसके गुरोह में दाखिल हो रहे थे। झूठ और फसाद का मरकज़ वसीतर और कवी से कवीतर हो रहा था। बहरहाल जिस दिन कूफे ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों बैअत की, वहाँ मौजूद तमाम लोगों में इत्तिफाक़ राय पाया गया, जिसकी मिसाल इससे पहले नज़र नहीं आती। वो मिंबर खिलाफत जो अपने मौला व आका के दुनिया से रहलत हो जाने पर गमज़दा था, अब वो खुश नज़र आ रहा था, इसलिए कि अपनी आगोश में अंबिया की विरासत के मज़हर को देख रहा था। उस ज़माने में हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई आबिद व ज़ाहिद नज़र नहीं आता था जिसमें तमाम नेक खसलतें जमा हों।
یہی وجہ ہے کہ فقط انہی کی شخصیت تھی جن پر مختلف آراء اور نظریات رکھنے والے اپنی رضا و رغبت سے تسلیم ہوئے، اور قیادت کی تمام صفات آپ میں بدرجہ عتم موجود تھیں۔ بہت سے افراد خود پرستی اور مفاد پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ بن چکی تھی، اور امام حسن علیہ السلام جن کا اخلاق پیغمبر کے عادات و اطوار اور صفات کی یاد تازہ کرتا تھا، یہ افراد ان کی بیعت کر کے اپنے گھناؤنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امام کے اخلاق اور نیک عادتوں کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ دیکھو کیا فوج ہے، کیا جاہ و حشم ہے، یہی تو وہ فوج ہے جس نے افواج مصر کو غارت کر دیا۔ خبر آئی ہے کہ مصر کو غارت کر دیا ہے۔ پھر سے یہ مکار بڈھا اپنے علاقے میں دکھائی دینے لگا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پھر کبھی اس بڈھے کو نہ دیکھوں گا۔ چلو درود ہو امیر المومنین پر۔ سلام ہو سردار فاتح اور ہمارے ہمیشہ کے یار پر۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے امیر المومنین کہہ کے اپنے دل میں ہنس رہے ہوں گے۔
सच बताओ पिसर अबू सुफियान, क्या तुम नहीं हंस रहे थे? ए लोमड़ी सिफत, मेरी आरजू थी कि खवारिज की एक तलवार से तुम अपने अजदाद से जा मिलते। ताज्जुब है, मेरी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल यही आरज़ू थी। पिसर अबू सुफियान, सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। यजीद, तुम्हारी शायरी कैसी चल रही है? आजकल मैं शिकार कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने शिकार शुरू कर दिया है? अलबत्ता शिकार और शायरी में भी अजीब राब्ता पाया जाता है। शिकार की खाल को शायर लिखने के लिए इस्तेमाल करता है और उसके गोश्त से हम जैसे फकीरों का पेट भरता है। हमारे जैसे मक्कार से ताज्जुब है कि मेरे बेटे का मजाक ना उड़ाओ। कल को अगर वो मेरी जगह आ जाए तो तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देगा। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, इसलिए कि मैं इस नौजवान शायर में हुक्मरानी के कोई आसार नहीं देखता। तेरे मुंह में खाक हो बदबख्त। मैं मुतमईन हूँ कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो। अजीब है। बताओ, उस हमलावर की वार से तुम कैसे बच गए? बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम बचे हो। अब कुछ देर आराम कर लो और फिर दरबार आ जाना। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुमको हमेशा मेरी जरूरत रहेगी। कहाँ है वो? आप बैठे हो, अभी आता हूँ। शेमर, अमर और हजार तुमसे मिलने आए हैं। कहाँ? उधर साय में बैठे हैं। तेरा क्या कहते हैं? हाँ, कैसे आना? तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। तुमने हसन इब्न अली की बैत से मुताल्लिक शर्तें सुन ली, जंग और गैर जंग में पैरवी। क्या ख्याल है तुम्हारा? उस शर्त पे कि हसन इब्न अली माविया से जंग करे, बस। हसन के हाथ बैत? लेकिन तुमने तो उनके बाप से जंग की है। हमने माविया से भी जंग की है। हसन न अली है और न माविया जैसे। धोखा ना दो शेमर, हसन वही हैं जो अली थे। उनसे तुम्हारी दुश्मनी उनके बाप की दुश्मनी से कम नहीं है। हमारी मुआविया से दुश्मनी उससे 100 गुना ज्यादा है। जानता हूँ तुम्हारी मुआविया के साथ दुश्मनी है, लेकिन मुआविया के पास दौलत के अलावा सरदारी की भी ताकत है। इराक वाले माविया की सरदारी को नहीं मानेंगे। वो माने या न माने, मुआविया तख्ते सल्तनत पर है और बाकी रहेगा। शायद वो शाम में हो, न कि इराक में। उसकी सरदारी शाम, यमन, मिस्र और जजीरत तक है। अशअस नहीं सुना अशअस ने क्या कहा? मुआविया उस वक्त यहाँ कदम रख सकता है कि जब हम यहाँ न हो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बताता हूँ मुआविया के कुत्तों। मेहमानों का कत्ल? शेमर, हम यहाँ मशवरे के लिए आए हैं, न झगड़ा करने के लिए। हम पर तलवार उठा रहे हो? आ जाओ शेमर। सुनो अम्र, बनु उमैया को इराक की सरदारी नसीब नहीं होगी, यहाँ तक कि वो अली के शियों को भी अपने साथ मिला ले। तुमसे कोई बात नहीं करनी। आम्र, चलो चलते हैं।
हज्जार मेरी बात सुनो। नहीं, तुम सुनो। ये तुम ही थे कि सिफीन में खुफिया तौर पर मुआविया के हाथों बैत की, और जब कुरान नेज़ों पर उठाया गया तो लोगों को फर्जंद अबू तालिब के खिलाफ भड़काया। ये सच है, तुम ही लोगों ने तलवार इब्ने मुलजिम के हाथों में दी। खुदा की कसम, अगर तुम धोखेबाजी करोगे तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो कस्साब ऊँटों के साथ करते हैं। अब जाओ और इस अहमक के कान में कह दो कि कजरवी इख्तियार न करे। तुम मेरी बात सुनो, मैं 10,000 बहादुर जंगजू और इनसे भी खूंखार अफराद को अपने झंडे तले जमा करूंगा, और फिर हम सब हसन इब्ने अली के साथ मिलके तुम्हें और हिंदा की औलाद को नीस्त नाबूद कर डालेंगे। आओ आगे। नहीं छोड़ूंगा। शेम, चलो घर चलते हैं। हमें अबू सुफियान के बेटे को खत लिखना चाहिए। लिखना चाहिए कि अगर तख्तो ताज चाहिए तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। चलो चलते हैं। हमें होशियार रहना चाहिए। उधर सुनो क्या कह रहे हैं। सुनो जमात, शाम से खबर आई है कि माविया लश्कर जमा कर रहा है और फितना बर्पा करने का कष्ट रखता है, और ये भी खबर है कि अम्र आस मिस्री सिपाहियों समेत उससे मिल गया है। तुम लोग अबा मोहम्मद के कासिद अपने कबीले के सरदारों तक ये खबर पहुंचा दो, और साथ में ये हसन इब्ने अली के खत ले जाएं और कहना फर्जंदे रसूल खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। जाओ, खुदा हाफिज। अब जाएं। चलो चलते हैं। सुनो शिम्र, मुआविया ने लश्कर तैयार कर लिया है और अमरास भी उससे मिल गया है, और हसन इब्ने अली ने भी अपने कासिद हर जगह रवाना कर दिए हैं, और वो भी जंग की तैयारी के लिए फौज जमा कर रहे हैं। चलो अच्छा है, अबा मोहम्मद ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सुनो शिमर, अमरिया जिंदा है और माविया से मिल गया है। लगता है वो अहमक भी अपनी मामूरियत अंजाम नहीं दे पाया। अच्छा है, मैंने भी अहद किया है कि सुफियान और आस के बेटों को मैं अपने इन्हीं हाथों से 2 टुकड़े कर दूं।
اگر وقت آ گیا تو میں علی کی طرح اس کی شرمگاہ کو دیکھ کے شرماؤں گا نہیں، چاہے وہ ہزاروں قرآن نیزوں پہ لائیں اور اس کے تمام اجداد میرے سامنے ننگے ہو کے ناچیں، خدا کی قسم میں سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جب کسی کو امر آس کے بارے میں خبر نہیں ہے تو ابا محمد کیسے اور اتنی جلدی سب سے پہلے شام کے حالات سے باخبر ہو گئے اور فوراً اپنے نمائندوں کو کوفے کے طرف بھیج دیا۔ اچھا ہے، یہ جوان مجھے پسند ہے۔ میں پہلے سے کہتا تھا کہ یہ نہ علی ہے اور نہ معاویہ جیسا۔